Namaste. Namaste, good evening, Sat Sri Akal, Adab. Welcome to Facebook Live session with me, Pooja, on Pure Soul with Yoga. Yes, today I'm quite late, but I thought I will make one video on Instagram and I will post it on Facebook, but apparently my phone memory got full with lots of videos and I could not do that, so I had to come exclusively on Facebook for my viewers and share this information what I have shared on Instagram just a few minutes back. And yes, I have come here to share something very special, very interesting and very informative and very essential, very significant to understanding yoga, who is seriously interested in understanding yoga. Now, ideally, I don't speak about these things on an informal platform because these things have very serious impact or implications in our day-to-day life. However, I think it is the need of the hour to pass on this information and to let people know after a certain point of time when you're stuck in a rut and you feel very bored and rigid in life, how do you renew your life and how do you actually make it how do you actually get in touch with yourself? Because in the quest of making people happy in relationships, in job, in work, in trying to achieve all the worldly possessions, we tend to lose ourselves. Okay, we go far away from ourselves, and then we get caught up with a lot of course, it goes without saying, we get caught up with a lot of negativity and a lot of it's like a vicious cycle where you're expecting something but you're clueless that whether this expectation actually matches with your higher aim in life. And that is only because we lack the higher aim in life. We constantly focus on the small goals that we have to achieve, which is making a career and having a house or having a fancy car and a very a very high figure salary and all the luxuries. All these are very small goals, mini goals, and we forget the meaning why we are living. Okay, and till the time we realize that, it is too late. So let us not make that late now, okay? Since we have gone through this painful period of this pandemic and have gotten a chance to be with ourselves, ample of time to spend with ourselves at home or wherever. First of all, I will begin by saying that all the asanas, the difficult ones, of course, the handstand and the forearm stand and all the others, okay, you keep watching me doing. Unless and until you are in the class and being instructed by the teacher and have been told what is your weakness, what is your strength, please do not try this recklessly at home, because it will unnecessarily injure you and you will end up hurting yourself, because it takes a lot of practice, it takes a lot of effort for years. I'm serious about this. I have not done this overnight and I have achieved anything. It has taken years for me to and I've hurt myself a couple of times. I can actually show my bruises on my body. I've hurt myself a couple of times, and that's how I have finally got to the final goal. So please, whenever you try something at home, don't just recklessly do it. Take safety precautions, and most importantly, do it under experts' supervision and guidance. Proceeding ahead, the information that I came to share with everybody is the 3 types of yoga that's also mentioned in Bhagavad Gita. And as we all know, Bhagavad Gita was orated by Shri Krishna to Arjuna. Okay, अब मैं थोड़ा हिंदी में बात करूँगी
और क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि फेसबुक में मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए, ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी मुझे देखती है। और इंग्लिश में अगर किसी को देखना है एंड एनीबडी वांट्स टू फॉलो इन इंग्लिश व्हाट आई हैव जस्ट सेड और आई एम अबाउट टू से, you can actually watch my video on Instagram. Okay, so तीन किस्म के तीन प्रकार के योग होते हैं जो भगवत गीता में बताए गए हैं, और ये श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को जब वो युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है कि सामने वाले तो मेरे अपने ही हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इनसे लड़ाई करके, इनसे युद्ध करके मुझे क्या प्राप्त होगा। इतने वक्त तक वो उबलता रहा और परेशान होता रहा कि द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ, तो हमें युद्ध करना चाहिए। जब युद्ध की बारी आई तो अर्जुन अपने पैर पीछे ले रहा था। तो उस वक्त कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन कोई और नहीं है, कृष्ण ही है। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब है चेतना, अवेयरनेस। ओके, और अर्जुन को क्यों चुना गया था? सबसे जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है अर्जुन को, इसलिए चुना गया था क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि उसका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस था, और इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान उसे दिया गया। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि ये युद्ध तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, तुम व्यक्तिगत फायदे या हानि के बारे में नहीं सोच सकते। इस युद्ध को तुम्हें लड़ना है क्योंकि ये धर्म युद्ध है, और आप धर्म के पक्ष में हो और वो अधर्म के पक्ष में है। तो जो प्रकृति के साथ अधर्म करेगा उसे वैसे ही दंड मिलना चाहिए, और उसका जो काम सौंपा गया है वो उनको सौंपा गया है जिसको कृष्ण ने चुना है। ओके, और कृष्ण खुद आए हैं धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए। सो दिस वाज द होल कैरेक्टराइजेशन। एंड तब वो समझाते हैं अर्जुन को कि एक होता है फर्स्ट इज कर्म योग, सेकेंड इज भक्ति योग, एंड थर्ड इज ज्ञान योग। तो पहले वो उनको कर्म योग के बारे में समझाते हैं। अब ये कर्म योग किन के लिए है? कर्म योग उन लोगों के लिए है, कौन प्रैक्टिस करेगा कर्म योग? जो लोग ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो गो गेटर्स होते हैं, जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं बैठकर, ठीक है, वो काम ज़्यादा करते हैं, वो मूवमेंट ज़्यादा करते हैं। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर वाले कर्म योगी होते हैं, ठीक है। तो वो उनको लगता है कि ये काम मैं ही ठीक से कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, इसी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारियाँ होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं उनको कर्म योग प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कर्म योग का मतलब क्या है? कि कर्म योग का मतलब ये है कि जब हम पैदा होते हैं हमें कोई नहीं बताता है कि हमें किस तरह से हमारे एक्शंस हमारे होने चाहिए, हमें किस तरह से हमारा स्वभाव रखना चाहिए। हमारी सोच भी कर्म है, ठीक है, ये हमें कोई नहीं बताता। एवरी थॉट इज ऑल्सो एन एक्शन। हम जो बात करते हैं वो भी कर्म है, हम जो करते हैं वो तो कर्म है ही। तो ये हमारे कर्मों का जो प्रभाव है वो हमारे डेस्टिनी पर, हमारे फेट पर, हमारे जो हम जिसको हम किस्मत कहते हैं, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, उस पर पड़ता है। हम अभी जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़ेगा। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? तो भगवत गीता में बताया है श्री कृष्ण ने कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो सबको ये पता है श्लोक, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑलवेज ऑन द एक्शन। अगर आप एक्शन पर फोकस रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे लाइफ में। लेकिन अगर आप एक्शन इसीलिए करेंगे क्योंकि आप उसके रिजल्ट से मोटिवेटेड हो, या उसके रिजल्ट पर आपकी नज़र है, या आपको उसका ग्रीड है, आपको उसकी लालसा है कि ये कर्म करने से मुझे ये लाभ मिलेगा या ये प्राप्त होगा, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा मिलेगी, उससे आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी। इसीलिए हमारा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हमारे सारे कर्म हम डिवोट करें कृष्णा को। एंड दैट्स व्हाट कृष्णा सेज, डिवोट योर ऑल एक्शंस टू मी।
अपने एक्शंस को मुझ पर डिवोट करो। ये मत समझो कि ये कर्म तुम किसी और के लिए कर रहे हो, क्योंकि वो मेरा, मैं और तुम का भाव, वो भावना आ जाती है जिससे हम हमारा ईगो बढ़ाते हैं, और ईगो बढ़ने से हम सब जानते हैं कि हमें चोट पहुंचती है, मानसिक तौर पे और हर तरीके से, साइकोलॉजिकल तौर पे। और उससे उभरने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि हमारी मेमोरी से वो पेन हटता नहीं कि हमें किसी ने दुख पहुंचाया, हमें किसी ने चोट पहुंचाई। लेकिन अगर हम सारे एक्शंस ईश्वर को डिवोट करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ों को झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया कर्म योग। दूसरे पर आते हैं, वो है भक्ति योग। अब भक्ति योग किसके लिए है? भक्ति योग उन पर्सनालिटीज़ के लिए है जो इमोशनल होते हैं, जो भावनात्मक होते हैं, जिनका अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रहता है, जो बार बार चोट खाने पर भी प्रेम पर जिनका विश्वास नहीं उठता, जो वो हमेशा हर चीज़ से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो चोट भी खाते हैं, क्योंकि उनको पता, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अगर प्रेम करती हूँ या करता हूँ तो मुझे रिटर्न में भी वही मिलना चाहिए। अगेन, क्योंकि हम एक्शन पर फोकस कम कर रहे हैं, हम उसके रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हम इमोशनली बहुत ब्रूज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मन में उस गहराई से उस चोट को वो घर कर जाते हैं, और उस वजह से हमारी लाइफ कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है, थम जाती है, हम ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है? हमें भक्ति योग का मार्ग चुनना है जो इमोशनल है। अब उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे संत मीराबाई थी। संत मीराबाई क्या करती थी कि वो जब उनके हस्बैंड गुजर गए थे, वो एक तारा लेके स्ट्रीट्स पर गाती रहती थी, कृष्ण के गाने गाती थी, क्योंकि वो कृष्ण की भक्त हो चुकी थी, कृष्ण की डिवोटी हो चुकी थी। और उनको वो इतनी ज़्यादा डिवोटेड थी, इतनी ज़्यादा उनको श्रद्धा थी कृष्ण के ऊपर कि हर चीज़ में उनको कृष्ण दिखाई देते थे, हर व्यक्ति में उनको कृष्ण दिखाई देते थे, हर चीज़ में कृष्ण की मर्जी उनको नज़र आती थी। तो क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, रजवाड़ों के खानदान से थी, वो रजवाड़ों की बहू थी वो, तो उनके घर वालों को ये गवारा नहीं था, मंजूर नहीं था कि उनकी बहू इस तरह से भटक रही है सड़कों पर सफ़ेद साड़ी पहन के और गाते हुए। तो उनकी शान के खिलाफ था, तो वो उसको मार देना चाहते थे। उन्होंने उसको जहर दिया, और मीराबाई वो जहर पी गई कृष्ण का आशीर्वाद समझ के, कृष्ण की मर्जी समझ के, और उस जहर से उनको कोई हानि नहीं पहुंची, और वो बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बिल्कुल ठीक थी। ये एक चमत्कार तभी देखने को मिलता है जब इंसान हाईली डिवोटेड होता है उस ईश्वर के आगे, उस ब्रह्मांड शक्ति के आगे, कि सबसे ऊपर वो है और उससे बढ़कर कोई इंसान नहीं है। तो कोई इंसान आपके वो उर्दू में कहा जाता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आपका डिवोशन बहुत ज़्यादा प्योर है और हाई है, तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी चलाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वो फेथ होना चाहिए एंड समर्पण भाव आना चाहिए। तो ये हो गया भक्ति योग। तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग है उन लोगों के लिए जो माइंड फैकल्टी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनको साइंटिफिक चीज़ें समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो हर चीज़ का प्रमाण चाहते हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जैसे प्रेम है या कोई शक्ति का अनुभव है या कोई चमत्कार है, वो हर चीज़ को साइंटिफिकली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तभी उस पर विश्वास करते हैं। इसमें कोई उनका कसूर नहीं है। दैट्स हाउ दे आर मेकअप इज, दैट्स हाउ देयर पर्सनैलिटी इज। सो इट इज़ फाइन, बट प्रोवाइडेड आप अपने खुद के ही दिमाग के जाल में फंस के ना रह जाएं। अल्टीमेटली ज्ञान योग भी आपको एक ही सीख देगा कि आपको हाईएस्ट लेवल पर जाकर भी अपने आप को समर्पण ही करना पड़ेगा उस फेथ के आगे, उस शक्ति के आगे, उस आत्मा के आगे जो पूरे संसार को गवर्न कर रहा है, चला रहा है, जिसकी मर्जी से सब कुछ चल रहा है। और हम सिर्फ वी आर जस्ट मॉर्टल बीइंग्स, क्योंकि हम इंसानी शरीर में हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे टेम्पररी आए हैं और हमें अपना काम करना है। लेकिन अपना काम करने के लिए हमें समझना है कि हमारा हायर एम क्या है लाइफ में। अगर हम यही नहीं जानते हैं कि हमें जाना कहाँ है, तो ये तो वैसी बात हो गई कि आपने
गाड़ी खरीदी, आपने ड्राइवर हायर किया और आप ड्राइवर को बता नहीं रहे हो कि जाना कहाँ है, तो वो ड्राइवर अपनी मनमानी करेगा। तो वैसे ही आपका दिमाग, आपका मन अपनी मनमानी कर रहा है, अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी चला रहा है। बजाय ये कि आप मालिक हो, आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए। आपकी भावनाएं, आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। Therefore, you need to practice, this 3 types of yoga, specifically, which is, मैंने कहा जिस पर्सनालिटी को जो सूट करता है उनको वो प्रैक्टिस करना चाहिए, ये समझने के लिए कि इसके थ्रू आपका रास्ता निकलेगा, इसके थ्रू आप हाईएस्ट एम तक पहुंचेंगे और फिर आपको अपनी लाइफ का रियल मीनिंग समझ में आएगा। तब तक आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इट इज़ जस्ट अ वेरी, it's a mediocre life, because an aimless life is always a mediocre life. When you have an aim, it is something special. You're heading towards, you have clarity, you have focus, you're heading towards something great, and you will feel in the same manner. So that's it from me as of now. I don't want to extend this too much, क्योंकि ज़्यादा कुछ इस के बारे में बोलने के लिए है नहीं। ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल के रखी है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है और कैसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और तभी आपको अंडर गाइडेंस चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। बट as of now, this is all I can share with you. I hope you like this video. Please tell me in the comment section. और आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो या आपको कुछ अच्छा लगा हो, जो भी है अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव। एंड आती रहूँगी मैं इस तरह से कुछ ना कुछ योग के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जो कि ज़रूरी है जानना, और इट विल हेल्प इमेंसली आपकी लाइफ को चैनलाइज करने के लिए, सही ढंग से जीने के लिए। सो टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एंड स्टे होम। लॉकडाउन अभी हटा नहीं है। सो आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नमस्ते।